students. Today we are going to solve O-levels accounts paper, paper 1, which contains 35 MCQs. Let's check the paper. Okay, my students, see the paper. Now the question number 1. Question number 1, it says a trader prepares financial statements each year. What does these assist the trader to do? Calculate the amount owing to the credit suppliers? No. Calculate the cash drawings only? No. Check the bank statement balance? No. Make decisions about the future? Yes. This is the answer. Getting my point clear? This is the answer. A trader prepares financial statement just for the sake of making decisions for the future. These are not the only reasons for making the financial statement. Okay. About the second bit, which is not an example of book entry, double entry bookkeeping. Okay, देखते हैं भाई कौन सा है? Not an example of book entry. Achha. Now, you must remember one thing. Book entry means recording in the 7 prime books of accounts. 7 prime books you all know. Cash book, petty cash book, sales day book, sales return day book, purchase day book, purchase return day book, and journal. So, make entry in the cash book? No, it's not the answer. Okay, it means we are recording in cash book. This option, cost of goods purchased on credit entered in the supplier's account, this is also not the answer because we are making the accounts. It's also part of bookkeeping, making 3 accounts. Now, D option, we are writing in sales return day book or sales return journal. It's not the answer. So, C is the correct answer. Because the thing is, expenses and income statement recording is not part of bookkeeping system. Okay, come to the MCQ number 3. It's a very simple MCQ. You just need to calculate the liabilities. So this is the liability, trade payables, the first liability, other payables, second liability, bank overdraft, third liability. Just add all the liabilities and you will get the answer. So if we add all the liabilities, what answer we get? Trade payables 4,500 plus others payable 300 plus 1,400, bank overdraft. The total is 6,200. 6,200 is the answer. Okay. So B option is the answer. Done? Okay. Now come to question number 4. There is nothing in this question number 3. You just need to calculate it. If anybody who knows the liability can easily do that. Okay. What does the owner's equity consist of? Okay. C. Only the amount of money in the bank account? No. Total assets of the business owned by the business? No. Total current asset, less current, this is working capital. Assets owned by the business entity is the definition of assets. Only this option is left, which says, yes, the amount owed by the business to the owner, the owner's investment. So the answer for question number 4 is B. Now question number 5. Which entries did Sally make to record the following transactions? Rashid, a credit customer. अच्छा, in this question it is very easy. देखो बहुत आसानी सी बात है कि अगर सैली रिकॉर्ड कर रही है तो वो सेल्स रिटर्न रिकॉर्ड कर रही हो. ठीक है, सैली रिकॉर्ड कर रही है ना, राशिद कस्टमर है, कस्टमर जब रिटर्न करता है तो हम उसको सेल्स रिटर्न कहते हैं. दिस इज द आंसर. खत्म. इसमें कोई तरह ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं, को सोचने की इतनी प्रॉब्लम नहीं. ओके. Question number 6. Now come to question number 6. Paul, first know who is Paul. Paul is a customer of Mary. ये बात समझ आ गई? Paul से पैसे लेने. कैसे पता चला पैसे लेने? क्योंकि ये बैलेंस दिया हुआ, ठीक है,
और साथ साथ ये सेल्स दी हुई। गेटिंग माय पॉइंट क्लियर? इसका मतलब इसको सेल की होगी पे कस्टमर। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? अच्छा, नाउ सी, नाउ Paul has to pay on 1st April. Paul has to pay Mary $90. Paul is owed to Mary 90. ये बात तो सही है, ठीक है। बाकी देखते हैं कि कुछ हो सकता है। Paul sold goods. Paul is not selling the goods, भाई। Paul is basically buying the goods. जो ये ऑप्शन भी गया। Mary, how could Mary return the goods? Mary is the seller. Seller receives the return. Seller do not return. ये भी नहीं हो सकता। Mary owed to Paul, ये भी नहीं हो सकता। जाहिर सी बात है कि मैरी जो है उसको पैसे लेने देने थोड़ी। ओके, now come to the next point. In which section of Zameen's ledger would the following accounts balances be maintained? देखो, एक होता है हमारे पास जनरल लेजर जिसमें सारे के अकाउंट्स होते हैं। एक सेल लेजर होता है व्हाट अबाउट ऑल द कस्टमर्स, इंडिविजुअल कस्टमर्स के अकाउंट्स होते हैं। एक परचेज लेजर होता है जिसके अंदर सिर्फ इंडिविजुअल सप्लायर्स के अकाउंट होते हैं। ठीक, ये दो ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि बात अगर सेल्स अकाउंट की बात है इसमें कि इसमें जनरल लेजर की बात हो रही है। सेल्स कम्स इनटू जनरल लेजर, ठीक है। अब सेल्स अकाउंट आएगा, या ए ऑप्शन आंसर हो सकता है या बी हो सकता है, लेकिन ए इसलिए नहीं हो सकता। उसकी वजह क्या है? ए इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये जो हार्जित है ये एक कस्टमर है, इसका अकाउंट परचेज लेजर में तो नहीं हो सकता, तो ये आंसर भी नहीं होगा। ये आंसर है आपका, ठीक है। सेल्स हमेशा जनरल लेजर में होता है और कस्टमर का अकाउंट जो है वो सेल्स लेजर के अंदर होता है। तो बी ऑप्शन जो है वो आंसर होगा इसका, क्वेश्चन नंबर 7 का। अच्छा, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8. Sue allows 2% cash discount, okay, to credit customers, okay, who sell their accounts within 28 days. ठीक है, Jane, 28 days is the early bird discount, which is called early bird discount or cash discount. Jane purchased goods list price 200 on 10 September. She returned the goods on 15 September. अच्छा, अब इस सवाल में मसला पता क्या है? उन्होंने पूछा है कि which entry would Sue make on 15 September? सेल्स रिटर्न जनरल बनेगी और 200 की बनेगी एंट्री। देखो, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी तो हो ही नहीं सकते ना, क्योंकि अगर सू जो है वो परचेज नहीं कर रही ना, तो सेल कर रही है, तो ये तो ऑप्शन तो आंसर नहीं हो सकता। अच्छा, अब सेल्स रिटर्न जनरल 196 आएगा या 200? ओ भाई, बात ये है कि यहाँ पे जो है ना, सू ने ट्रेड डिस्काउंट तो दिया नहीं है। अगर ये 2% ट्रेड डिस्काउंट होता तो फिर ये अमाउंट होता 196 का। ये तो कैश डिस्काउंट का है, ट्रेड डिस्काउंट तो दिया ही नहीं है। इसका मतलब है कि 200 का माल वापस किया तो 200 पे रिकॉर्ड होगा, ट्रेड डिस्काउंट नहीं है। अगर ट्रेड डिस्काउंट होगा तो माइनस कैश डिस्काउंट। ओके, अब चलते हैं 9 पे। अच्छा, ट्रांजैक्शन वाज पोस्टेड टू द रॉन्ग अकाउंट ऑफ द सेम क्लास। अच्छा, अब इसके अंदर क्या हो रहा है कि देखो, एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री की अगर हम बात करते हैं तो वो आंसर नहीं हो सकता हमारा, ठीक है, क्योंकि ये अमाउंट की मिस्टेक होती है। ओरिजिनल एंट्री का मतलब या तो आपने अमाउंट ओवरकास्ट कर दिया या अंडरकास्ट कर दिया। प्रिंसिपल हो नहीं सकता क्योंकि एसेट की जगह एक्सपेंस, लायबिलिटी की जगह रेवेन्यू, इस तरह होता है प्रिंसिपल। रिवर्सल भी नहीं हो सकता, इसलिए कि एक डेबिट होगा, जिसको डेबिट करना उसको क्रेडिट करते, इसको क्रेडिट करना उसको डेबिट कर दिया। द करेक्ट आंसर इज ऑब्वियसली कमीशन, क्योंकि दोनों कस्टमर्स के अकाउंट में मिस्टेक हुई, दोनों सेम क्लास है कस्टमर्स, ठीक है ना। और जैसे मोहम्मद तैयब और तैयब सलीम, दो कस्टमर, तो नाम की मिस्टेक, दोनों कस्टमर सेम क्लास। ओके, तो 9 का ऑप्शन होगा आंसर ए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 में जो है हमें जो है वो बेसिकली मोटर व्हीकल एक्सपेंस जो है वो मोटर व्हीकल अकाउंट्स में चला गया, तो ये बेसिकली एरर ऑफ प्रिंसिपल है, इसे हमें सही करना है। मोटर एक्सपेंस इनकरेक्ट है, मोटर व्हीकल सही है। मोटर व्हीकल तो इसमें जो है बहुत सिंपल है ये कि ये आंसर होगा। उसकी वजह क्या है कि मोटर इसकी वजह क्या है, सॉरी, ऑप्शन बी इज आंसर। द रीजन इज कि मोटर व्हीकल एक्सपेंस रॉन्गली डेबिट हुआ है, तो हमने क्या किया, मोटर व्हीकल एक्सपेंस को क्रेडिट कर दिया और उसके साथ साथ जो है मोटर व्हीकल जो कि डेबिट नहीं हुआ था, एक्चुअली उसको डेबिट होना था, उसको हमने डेबिट कर दिया, तो बी ऑप्शन इज द आंसर। ओके, अच्छा, नाउ कम टू 11। व्हेन वी कम टू क्वेश्चन नंबर 11, तो इसमें क्या है देखो, मैं समझा दूं। Kate calculated her draft profit 28,400. Okay.
later she discovered the following errors. Rent prepaid was understated by 1000 and closing inventory was understated by 1500. अच्छा, ये दोनों वो एरर है, अगर आपने मतलब ये दोनों वो चीजें जो रिकॉर्ड नहीं हुई इनकम स्टेटमेंट। तो इनकम स्टेटमेंट में क्या होता है कि जब भी आप प्रीपेड रेंट एक्चुअली रेंट एक्सपेंस से लेस होता है, ये ध्यान में रखना। जो भी रेंट एक्सपेंस है आपका उसमें से प्रीपेड लेस होता है, तो रेंट एक्सपेंस को प्रीपेड कम कर देता है। एक्सपेंस को कम करने का मतलब है कि प्रीपेड रेंट बेसिकली प्रॉफिट को इंक्रीज करता है। अगर इसको हम इनकम स्टेटमेंट रिपोर्ट करेंगे, एक्सपेंस को कम कर देगा, यानी अल्टीमेटली प्रॉफिट को बढ़ा देगा। अगर एक्सपेंस कम होगा तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। क्लोजिंग इन्वेंट्री का रूल क्या है? क्लोजिंग इन्वेंट्री को अगर आपने कम लिखा है, जब आप उसको बढ़ाते हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री को, तो वो आपका कॉस्ट जो है बेसिकली उसको जो है वो कम कर देता है। जब कॉस्ट को कम कर देगा तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ जाएगा। जब ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ेगा तो नेट प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री को अगर आप बढ़ाएंगे सही करने के लिए तो आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो ये दोनों एरर बेसिकली प्रॉफिट को इंक्रीज करे। तो हम क्या करेंगे इसमें? बहुत सिंपल है, जो हमारा अमाउंट है 28,400, इसमें हम ऐड कर देंगे 1000 और प्लस इसमें हम ऐड कर देंगे 1500। तो 30,900 जो है यानी ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, और इसमें कोई दूसरी कंफ्यूजन की हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, 11 का जो है ऑप्शन आंसर होगा डी। ठीक, अच्छा अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या हुआ कि बैंक स्टेटमेंट शोड अ क्रेडिट बैलेंस। अच्छा, आपको ये बात पता होगी कि बैंक जब क्रेडिट बैलेंस शो करता है, इसका मतलब है कि वहाँ ओवरड्राफ्ट नहीं बल्कि बैंक में पैसे पड़े हुए। ठीक है, हमारे पास डेबिट बैलेंस होता है, बैंक के पास क्रेडिट बैलेंस होता है, बात जाने। ठीक है, क्योंकि बैंक की अकाउंटिंग रिवर्स होती है। हमारे लिए बैंक एसेट अकाउंट होता है और बैंक के लिए हमारा अकाउंट लायबिलिटी अकाउंट होता है। तो वो क्रेडिट बैलेंस शो करे, इसका मतलब पैसा मौजूद है वहाँ पे। ओके, डन हो गई बात। 2940। अच्छा, उसके बाद बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस में दो बैलेंस जब 2940 के साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि बैंक ने इंटरेस्ट दिया है हमें $70 का और $280 क्रेडिट ट्रांसफर कहीं से पैसे आए। ठीक है ना, हमारे अकाउंट में पैसे आ सकते हैं कहीं से भी। ठीक है ना, जैसे हम टीचर्स के अकाउंट में जो है सैलरी आती है, ऐसे ये अकाउंट में कहीं से पैसा आ गया। ठीक है, $280। ये बात कैश बुक को नहीं पता कि ये दो चीजें आएंगी। ठीक, कैश बुक को तो नहीं पता होती। कैश बुक क्या करता है, बाद में अपडेट करता है। जब बैंक स्टेटमेंट आएगा उसको अच्छा चाहिए इंटरेस्ट भी आ गया हमारे, वो ऐड कर लेंगे कैश बुक में। अब ये क्या हुआ, ये दो पैसे आए हैं बैंक में, कैश बुक को नहीं पता। तो अब आपको ये बताना है कि जिस दिन बैंक स्टेटमेंट 2940 शो कर रहा था, ये दो आइटम से पहले कैश बुक क्या शो कर रही थी। तो इट्स वेरी सिंपल, आपने क्या किया, कैलकुलेटर में लिखा बैंक का बैलेंस कितना है 2940, ये बैंक का बैलेंस है, इसमें सब कुछ रिकॉर्ड है। इसमें से आप माइनस कर दें जो पैसे आए, दो 70 और 280 को आप माइनस कर दें तो 2590 ऑप्शन ए जो है वो आपका आंसर बन जाएगा। बस खत्म हो गई बात। इसमें कोई ऐसी टेंशन वाली बात ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 का जो है आपका आंसर $2590 है, क्योंकि कैश बुक को पता नहीं था ये दो आइटम का, इसलिए कैश बुक 2590 पे होगी। जब वो ये आइटम ऐड कर लेगी तो कैश बुक भी खुद ब खुद 2940 पहुंच जाएगी। अच्छा जनाब, व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग अ सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट। देखो मैं पहले एक चीज समझाता हूँ। जब हम सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाते हैं तो उसकी वजह क्या होती है। हम सेल लेजर तो बना ही रहे, कंट्रोल अकाउंट बनाने की क्या जरूरत। देखो इसमें मसला ये होता है, देखो ये तो नहीं होता बैड डेट्स का तो मसला ही नहीं है। कंट्रोल अकाउंट्स का ताल्लुक सिर्फ ये बैड डेट्स के लिए तो नहीं होता, कंट्रोल पेबल्स के लिए भी नहीं होता। सी ऑप्शन भी कट गया आपको। अच्छा, कैश और क्रेडिट सेल के लिए भी नहीं हो सकता, क्योंकि कंट्रोल अकाउंट्स का कैश सेल से कोई ताल्लुक होता ही नहीं, वो सारी क्रेडिट सेल का होता। सी ऑप्शन में अब रह गया आपके पास एक ऑप्शन विच इज कॉल्ड बी ऑप्शन, टू मेक फ्रॉड मोर डिफिकल्ट। जाहिर सी बात है, कंट्रोल अकाउंट बनाने से हमें पता चल जाता है कि जो कस्टमर्स के इंडिविजुअल अकाउंट होते हैं, हर कस्टमर का एक अकाउंट हमारे पास होता है, तो हमें ये पता चल जाता है कि किस कस्टमर का कितना अमाउंट बाकी है लेना। तो कंट्रोल अकाउंट हमें वेरीफाई कर देता है कि हाँ ये इतना। अगर बीच में किसी के पैसे आ गए हैं, चले गए, हमें नहीं पता, कोई प्रॉब्लम हुई तो फ्रॉड ना हो जाए। तो कंपनी के अंदर जो रिकवरी डिपार्टमेंट होती है, कभी कभी उसके अंदर लोग फ्रॉड भी कर जाते हैं। ठीक है ना, इसके लिए ओके। क्वेश्चन नंबर 13, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में उन्होंने कहा है कि जॉर्ज इज प्रिपेयरिंग हिज परचेज एज अ कंट्रोल अकाउंट, व्हिच इंफॉर्मेशन वुड ही ऑब्टेन फ्रॉम हिज जर्नल। अच्छा ठीक है, मैं ऑप्शन ए की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑप्शन बी की पहले बात करते हैं। ये जो है क्रेडिट सप्लाईज की इंफॉर्मेशन आती है परचेज
लेजर से या परचेज जनरल से, जनरल से नहीं आती। बैड डेट रिटर्न ऑफ, इसका तो कोई ताल्लुक ही नहीं है परचेज जनरल से, क्योंकि तो कस्टमर्स का है। रिफंड रिसीव फ्रॉम क्रेडिट सप्लायर्स, इसका ताल्लुक कैश बुक से होता है अगर रिफंड्स आए तो। बाकी रह गया हमारे पास ए ऑप्शन, तो वो जो है करेक्ट ऑप्शन। जनरल से हमें ये पता चल जाता है कि कौन जो है बेसिकली कस्टमर है और सप्लायर भी है, तो उसका अकाउंट हम सेटल करते हैं कॉन्ट्रा से। एक कस्टमर है और वो हमारा सप्लायर भी है, तो ना हम उसको जो उसे पैसे देने और जो पैसे लेने उसको हम सेटल कर देते हैं अकाउंट से। मतलब एक आदमी है जिससे हमें 20,000 रुपये लेने और उसको हमें 30,000 रुपये देने, तो हम क्या करेंगे 20,000 खत्म कर देंगे, खाली 10,000 रुपये उसको दे देंगे। ठीक, ओके। नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट 15. A trader debited the cost of repairing office equipment to the office equipment account. How did this error affect the financial statement? Again error of principle है, ठीक है ना। ऑफिस इक्विपमेंट की जगह रिपेयरिंग की जगह जो है ऑफिस इक्विपमेंट, एक्सपेंस की जगह आपने एसेट डेबिट कर दिया, एरर ऑफ प्रिंसिपल। अच्छा, जब आपने एक्सपेंस को एसेट के अकाउंट में डाल दिया तो आपका एक्सपेंस कम हो जाएगा। जब एक्सपेंस कम होगा तो प्रॉफिट आपका जो है वो ओवर स्टेट हो जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट ओवर स्टेट होगा क्योंकि एक्सपेंस कम है, एक एक्सपेंस कम है। अच्छा, अब जब स्टेट ओवर स्टेट होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके ये दो ऑप्शन तो बेकार हो गए। ठीक है, यानी ये ए ऑप्शन आंसर है या बी है, क्योंकि जाहिर है अगर आपने एक एक्सपेंस छोड़ दिया है, टोटल आपके पास 12 एक्सपेंसेस थे, आपने 11 रिपोर्ट की, तो आपका प्रॉफिट तो ओवर स्टेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब या तो ऑप्शन ए आंसर है या ऑप्शन बी आंसर है। नाउ यू गो टू नो कि नॉन करेंट एसेट पे क्या हो, नॉन करेंट एसेट ओवर हो जाएंगे, इसका मतलब है कि ये ऑप्शन भी आंसर नहीं, ये जो है ना आपका ऑप्शन ए आंसर है। वजह क्या है कि प्रॉफिट भी आपका ओवर स्टेट हो जाएगा क्योंकि एक्सपेंस कम है, और टोटल एसेट बढ़ा देंगे तो आपका जो है नॉन करेंट एसेट भी जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, अच्छा जनाब 15 हो गया। अब आते 16 में। बहुत मजे का सवाल। 16 इज भाई, पता है मसला क्या है, 16 को बच्चे जो है ना बड़ा परेशान हो, पता नहीं कैसे। देखो मेरे पास पहले 16 को देखते हो। मशीनरी कॉस्ट है 52,000, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन 23,000। ठीक है, डिप्रिसिएशन जो है 20% ऑन कॉस्ट है। ठीक है, जहाँ कहानी खत्म। अच्छा, आफ्टर द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन वाज प्रिपेयर्ड, इट वाज फाउंड दैट द मशीनरी रिपेयर्स कॉस्टिंग 2,000 had been debited to machinery account. ठीक है, व्हाट इज द करेक्ट बैलेंस ऑन द प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी अकाउंट? अगर आपने मशीनरी की कीमत थी 50,000, आपने उसका डिप्रिसिएशन निकाल दिया है 52,000 से, क्योंकि 2,000 उसमें ऐड हो गए बाय मिस्टेक, एरर ऑफ प्रिंसिपल हो गया है, बाय मिस्टेक हुआ है। और वो ये हुआ है कि आपने जो है मशीनरी रिपेयर्स को कॉस्ट में डाल दिया। मशीन आपकी 50,000, कोई आपको इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं भाई। देखो, अगर आपने $2,000 ही सारा डाले ना, $2,000 का 20% कितना बनता है डिप्रिसिएशन, वो निकाल लो, कितना बनेगा 200। $2,000 का डिप्रिसिएशन बनेगा 200, प्रोविजन में से 200 कम कर लो। अगर 23,000 में से हम 400 बनेगा, 2,000 का 20% 400 बनेगा, तो 400 अगर हम यहाँ से कम कर लें 2300 में से, तो 22,600 आंसर आता है। बस सिंपल ये कैलकुलेशन। 2,000 आपने कॉस्ट ज्यादा लिख दी ना भाई, 2,000 जो कॉस्ट ज्यादा लिखी उसका डिप्रिसिएशन कितना बनता है 20% के हिसाब से 400, इतना प्रोविजन कम कर ले। उन्होंने प्रोविजन क्या बोला, प्रोविजन ही मांगा ना, प्रोविजन में से 200, 20% 2,000 का 200 यानी 400 रुपये बनेगा। 10% 200 और 20% जो है वो 400 रुपये बन गया, हो गया, कहानी खत्म। ठीक है, 22,600 आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो आपने ओवर किया उसी का 20% आप निकाल लोगे, कितना अमाउंट ओवर हुआ होगा। 50,000 के डिप्रिसिएशन में जाने की जरूरत ही नहीं, 2,000 एक्स्ट्रा है ना, उसका डिप्रिसिएशन माइनस कर दो। ओके, अब आ जाओ 17 में। 17 में क्या है, मशीन की कॉस्ट है 32,000 और ये सेल हुई है 14,000। टोटल डिप्रिसिएशन एट द डेट ऑफ डिस्पोजल 15,000। अच्छा, ये तो खैर बहुत ही आसान है क्योंकि बच्चे इसको बहुत इजीली कर लेते हैं डिप्रिसिएशन के डिस्पोजल को। इसमें करना ये होता है कि आपने जो है 32,000 आपने कॉस्ट लिख दी, माइनस प्रोविजन आपने किया 15,000, बुक वैल्यू आ गई 17,000, माइनस आपने बेचा कितने में 14,000, बुक वैल्यू 17,000, 32 माइनस 15 72,000, 14,000 आपकी सेलिंग प्राइस है, तो 3,000 आपका लॉस आ रहा है। ठीक है, ये आ गया आपका 3,000 का लॉस, ये करेक्ट आंसर। हाँ, चलो चाहते हैं नेक्स्ट पेज पे। अच्छा जनाब, हाँ ये वाला अकाउंट। अच्छा, इसमें एक बात ध्यान में रखना, मैं इसमें क्या करूँगा आपको कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की एंट्री जनरल में क्या बनती है वो पहले समझो। ठीक है, तो उसमें होता क्या है
देखो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो है पहले 900 दिया हुआ है आपके पास 1 सितंबर 2019 एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर। अच्छा 31 अगस्त को आपने कैलकुलेट किया प्रोविजन फॉर सॉरी ट्रेड रिसीवेबल आपका या अकाउंट रिसीवेबल या डेटर्स आपका बनता है 42,800 और इसका एस्टिमेट आपको करना है 3% मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 100 ये आपके पास आ गया 1284 आपका प्रोविजन बनता है अगस्त 2020 का। पुराना प्रोविजन ऑलरेडी जो मौजूद है प्रोविजन में वो 900 तो माइनस कर लेते तो एंट्री बनेगी 384 डॉलर्स आपको प्रोविजन बढ़ाने पड़ेंगे क्योंकि प्रोविजन ऑलरेडी 900 तो पड़ा हुआ है पहले से। अब उसमें आपको 1284 बनाने के लिए आपको 384 की इसके अंदर उसको ऐड करना पड़ेगा। अच्छा जब आपको प्रोविजन इंक्रीज करना है इसका मतलब ये दो एंट्रीज तो आपका आंसर हो ही नहीं सकती। प्रोविजन इंक्रीज करने के लिए क्रेडिट करना पड़ता है, ठीक है। अच्छा 1284 की एंट्री हमें बनानी नहीं है क्योंकि ऑलरेडी प्रोविजन 900 तो पड़ा हुआ है। ये एंट्री आपका जो है ये आपका ये करेक्ट ऑप्शन आ गया, ये आंसर आ गया, सही, ओके जनाब। अच्छा निर्मल ये जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 19 ये है बेसिकली IS2 इन्वेंट्रीज के मामले में और इसमें हम जो लॉ फॉलो करते हैं वो है लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट वैल्यू। अच्छा आप इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम ये करेंगे सबसे पहले ये देखेंगे कि देखो ये जो प्रोडक्ट जी है इसकी लोअर कॉस्ट है तो इसको कॉस्ट पे कैलकुलेट करेंगे और एच जो है ना उसकी NRV कम है तो वो इस पे कैलकुलेट होगा, ठीक है। अच्छा अब हुआ ये कि आपके पास जो है जी प्रोडक्ट जो है उसके 100 यूनिट्स कम हो गए तो जी को आप कैलकुलेट करेंगे यानी जी के आपके पास रहेगा 900 यूनिट्स। 900 यूनिट्स को आपने लेना है 2 रुपए के हिसाब से तो ये 1800 बनते और एच को आपने लेना है 800 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाई 1.2 तो ये बनेगा 2760। ए ऑप्शन जो है आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 आपका हो गया। अच्छा अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। और सर्विस बिजनेस कौन सा नहीं, सुपरमार्केट, इस पर इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई टाइम ज़ाया करने की जरूरत नहीं, ये हो गया। अच्छा अब इसके अंदर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की अगर हम बात करें फाइनेंशियल ईयर ऑफ पीटर एंड्स ऑन 30 सितंबर ऑन 1 अगस्त 2020 पीटर रिसीव्ड रेंट 1000। अच्छा अब 1 अगस्त को रेंट मिला हमें और ये रेंट जो है कहाँ का है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ठीक, 5 महीने का रेंट है। अच्छा यानी 1 महीने का बनेगा 200, ठीक। अच्छा अगर हम 30 सितंबर 2020 पे खड़े यहाँ पर तो इस रेंट को कितने अरसे गुजर गया, जुलाई गुजर गया, अगस्त गुजर गया, सितंबर, 2 महीने का प्रीपेड। 1 महीने का बनता है 200, 2 महीने का प्रीपेड कितना बनेगा 400। 400 क्या है बेसिकली, अच्छा रेवेन्यू रिसीव्ड इन एडवांस इज लायबिलिटी, ये बात ध्यान में रखना, रेवेन्यू अगर रिसीव्ड इन एडवांस होगा तो वो लायबिलिटी होगा। ये आ गया ऑप्शन आंसर, कोई इशू नहीं। अच्छा जनाब अब देखो जो कुछ भी पार्टनर्स को इन एडिशन टू अ शेयर ऑफ प्रॉफिट अ पार्टनर रिसीव इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी एंड चार्ज ऑन इंटरेस्ट ऑन टाइम, हाउ दिस रिकॉर्डेड इन द लेजर ऑफ। अच्छा इसमें बहुत सिंपल याद रखना, कैपिटल अकाउंट कभी भी नहीं आएगा इसके अंदर, यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, रेजिडुअल प्रॉफिट, सैलरी ड्राइंग, सैलरी हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो गया, कैपिटल हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जिसको कहते हैं, इसमें कैपिटल अकाउंट कभी नहीं आएगा, पहले ये ध्यान में रखना। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ करंट अकाउंट, तो ये ऑप्शन आंसर होगा। क्यों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करंट अकाउंट में क्रेडिट होता है, सैलरी क्रेडिट होती है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट होता है क्योंकि वो चार्ज किया जाता है, पार्टनर से लिया जाता है, ठीक। अच्छा जनाब ये आ गया स्पोर्ट्स क्लब। स्पोर्ट्स क्लब का जो है इन्होंने पूछा इनकम कितनी होगी, भाई इनकम 2 ही तो है इसमें, सब्सक्रिप्शन और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट, दोनों गाइड कर देंगे 26, 30, 31,000, डी ऑप्शन आंसर आ गया, कोई इसमें टेंशन की बात ही नहीं, ठीक है जनाब। 23 हो गया, अब चलते हैं 24 पे। 24 में क्या हुआ जी, क्लब बना लिया, हाय 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 क्लब बना लिया। अच्छा 24 क्वेश्चन अटेंड करने के लिए आपको सबसे पहले एक बात ध्यान में रखनी होगी कि आपको जो है वो फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। फॉर्मूला आप लिख लें, मैं आपको लिखवा देता हूं फॉर्मूला। फॉर्मूला लिखे तो फॉर्मूला जो है वो इसका क्या लिखा जाएगा वो आप लिख लें, आपके काम आएगा। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, ठीक है, इसमें ऐड होगा प्रीपेड एट स्टार्ट और अक्रूड एट एंड ऐड होगा, प्रीपेड एट एंड लेस होगा और अक्रूड एट स्टार्ट जो है वो लेस हो जाएगा। अच्छा अब इसमें देखें
कि 25,000 2,500 जो है आपके पास बेसिकली जो है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ, ठीक है। अच्छा 120 एडवांस फॉर द नेक्स्ट ईयर, इसका मतलब है ये प्रीपेड एट एंड है, तो ये जो है आपका माइनस हो जाएगा 120। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जी अक्रूड सब्सक्रिप्शन है वो अक्रूड एट एंड ये ऐड हो जाएगा 2660। ऑप्शन सी जो है वो आपका आंसर बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का। सिंपल, ठीक है। इसका फॉर्मूला है, उसी फॉर्मूले से कर लिया हमने इसको। अच्छा जनाब, एंथनी डज नॉट कीप अ फुल सेट ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, he knows his opening and closing cash balances and wishes to calculate his cash sales. Which item does Anthony not need in order to record his cash sale by? इसमें सीधा सीधा आंसर कैश डिस्काउंट है। कैश डिस्काउंट का मतलब है सिंपल है यार, पैसा आया नहीं गया नहीं तो घंटा को क्या रिकॉर्ड करें, ठीक है ना। ना आया डिस्काउंट का मतलब वो पैसा जो ना आएगा ना जाएगा, दफा करो, हो गया आंसर। चलो भाई आगे चलते। अच्छा चलो देखो टोटल कैश का टोटल जो फॉर्मूला है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का, ये सवाल है क्वेश्चन नंबर 26, और इसका फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला याद रख ले, रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल माइनस ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल और प्लस डिस्काउंट अकाउंट। तो सिर्फ डी ऑप्शन के अंदर ये आंसर दिया हुआ, ये फॉर्मूला है इसका, ठीक है। टोटल सेल्स निकालने का, सॉरी क्रेडिट सेल्स निकालने का ये फॉर्मूला है कि टोटल सेल के लिए क्या करें, कैश सेल भी इसके अंदर आ जाएगा। अगर टोटल सेल्स मांगा होता तो यहाँ कैश सेल भी होता है, ऐड होता है कैश सेल, लेकिन वो सिर्फ क्रेडिट सेल मांगा है। तो रिसीट फ्रॉम कस्टमर प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस डिस्काउंट अलाउड माइनस ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल, और अगर टोटल सेल निकालना होगा तो सिर्फ प्लस कैश सेल आ जाएगा। ये फॉर्मूला है इसका। चलो आगे जनाब, क्वेश्चन नंबर 27 जो है ये इन्वेंट्री टर्नओवर के फॉर्मूले से करना है, और इन्वेंट्री टर्नओवर का फॉर्मूला जो है बेसिकली वो हमें पता है कि वो बहुत इजी है। हमारे पास इन्वेंट्री टर्नओवर का फॉर्मूला है कि इन्वेंट्री टर्नओवर इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल्स डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। अच्छा अब इसके अंदर हमें क्या हुआ, एवरेज इन्वेंट्री भी दिया हुआ है, इन्वेंट्री टर्नओवर भी दिया, इसका मतलब कॉस्ट ऑफ सेल्स हमारा हो जाएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 80,000 मल्टीप्लाई बाय 6, तो ये आ जाएगा 4,80,000, ठीक है। फॉर्मूले के हिसाब से 4,80,000 आ जाएगा, और मार्कअप 25%, इसका मतलब 100 की चीज 125 की बेचनी है। तो 4,80,000 जो हमारे पास आंसर आया है, ठीक है, 4,80,000, इसका हमें 125% निकालना है, तो आंसर जो है वो 6 लाख हो जाएगा। अच्छा जनाब, अब आते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 28। अच्छा क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है, कंपनी, अच्छा ये जो है क्या बेसिकली ये भी रेशियो एनालिसिस का सवाल है, और क्वेश्चन नंबर 28 जो है क्वेश्चन नंबर 28 जो है उसमें हम देखते हैं क्या, देखो ईयर 1 में करंट रेशियो 2:3:1 2:4 करंट रेशियो बढ़ रहा है। तो भाई करंट रेशियो जो है वो कैसे बढ़ रहा है, करंट रेशियो बढ़ने की वजह क्या है। देखो इसकी वजह इन्वेंट्री नहीं हो सकता, लाइबिलिटीज भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ट्रेड रिसीवेबल। इसकी वजह है असल में आपका अदर रिसीवेबल्स आर इंक्रीजिंग, वेरी सिंपल, ठीक है। देखो इन्वेंट्री नहीं हो सकता, पेबल्स नहीं हो सकता। देखो अगर पेबल्स इंक्रीज होंगे तो इसका मतलब है कि आपका वर्किंग कैपिटल या वर्किंग रेशियो जो है वो डिक्रीज हो रहा है, पेबल्स नहीं हो सकता। अच्छा अगर आपकी इन्वेंट्री डिक्रीज हो रही है, ठीक है, अगर आपकी इन्वेंट्री डिक्रीज हो रही है तो वो भी आपका आंसर नहीं बन सकता बेसिकली, ठीक है ना। जो करंट रेशियो में अदर रिसीवेबल्स यानी वो चीज़ें जो इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल के अलावा जो चीज़ें आपकी इंक्रीज हो रही हैं, वो जब आपकी इंक्रीज होंगी तो ये आपका करंट रेशियो जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। कम टू 29। अच्छा जनाब, इस सवाल के अंदर बेसिकली सॉरी मिस कर दिया, सॉरी 29 हमने मिस कर दिया। ओके, ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो कस्टमर वो जो है इसको इंक्रीज करना है, ग्रॉस प्रॉफिट। अच्छा ग्रॉस प्रॉफिट जब इंक्रीज करना है तो जो है आप क्या करें, देखो नहीं डिप्रिसिएशन नहीं, कैश डिस्काउंट नहीं, ये आंसर। ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ाने के लिए आप जो है ट्रेड डिस्काउंट कम रखें, जितना ट्रेड डिस्काउंट कम रखेंगे उतना सेल्स का अमाउंट बढ़ाएगा, सिंपल।
ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाते हैं। नीशा जो है उसने ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किए, ठीक है। सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट। सेकंड ईयर में एक्चुअली उसमें हुआ क्या, सेकंड ईयर नीशा reduced the selling price and sold 1500 units. Her gross profit decreased by 250. There were no change in the cost per unit. अच्छा, अब इसमें हमें क्या करना होगा, बेसिकली इसमें हमें करना ये होगा कि पर यूनिट कॉस्ट होगी। अगर 1500 यूनिट सेल किया तो आपकी कॉस्ट ऑफ सेल चेंज हो जाएगी। ये 1500 यूनिट्स के हिसाब से अगर आप इसी कॉस्ट ऑफ सेल निकालेंगे तो वो बनेगी 1500 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 4.5, तो कॉस्ट आपकी बन जाएगी 6750, ठीक है, सही है ना। अच्छा, और अच्छा उन्होंने कहा कि ग्रॉस प्रॉफिट जो है आपका, ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो आपका कम हो जाएगा 250 से, यानी ग्रॉस प्रॉफिट आपका हो जाएगा 5250। अच्छा, अब होगा क्या, सेकंड ईयर में क्या हुआ, सेकंड, ठीक है ना, आपकी सेलिंग प्राइस बढ़े। अब आपने क्या करना है कि सेलिंग प्राइस कम हो गई और 1500 यूनिट उसने जो है वो सेल कर दिए। अच्छा, 1500 यूनिट जब उसने सेल कर दिए तो और प्रॉफिट इतना हो गया, ठीक है ना, तो अब हमें ये देखना है कि 1500 यूनिट के हिसाब से उसकी जो है वो कैलकुलेशन क्या बनेगी। लेकिन वो ये कह रहे हैं बेसिकली कि प्रॉफिट कम हुआ है और सेलिंग प्राइस कम हो गई है, ग्रॉस प्रॉफिट कम हो गया है, कॉस्ट पर यूनिट में कोई फर्क नहीं आया। अच्छा, अब इसमें पता क्या होगा, बेसिकली हम क्या करेंगे कि 1500 यूनिट की कॉस्ट हम निकाल लेंगे, ठीक, तो वो हमारी बनती है 1500 यूनिट की कॉस्ट 4.5 के हिसाब से 6750 कॉस्ट ऑफ सेल, ठीक है। अच्छा, और उन्होंने जो है ये नहीं बताया हमें कि सेलिंग प्राइस कितनी होगी, भाई सबसे बड़ा प्रॉब्लम कि भाई सेलिंग प्राइस हमें नहीं पता, उन्होंने टोटल वैल्यू ऑफ सेल हमें बतानी 1500 यूनिट्स की सेलिंग प्राइस कितनी होगी। तो कॉस्ट ऑफ सेल जो है उन्होंने कहा कि वो सेम रहेगी, और जो है ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो आपका डिक्रीज हो गया 5250 से, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आपकी हो गई 6750 और ग्रॉस प्रॉफिट आपका आएगा 5250, तो ये आपकी बनी टोटल सेल्स वैल्यू 12000। अगर ग्रॉस प्रॉफिट और कॉस्ट को ऐड कर देंगे तो सेल आ जाएगा 12000, ठीक है, 12000 आ गया। अच्छा, अब 12000 जो हमारे पास आ जाएगा तो सी ऑप्शन जो है हमारा सिंपल सा डायरेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक। अच्छा, अब आते हैं लास्ट पेज पे, हमारा मेरे ख्याल लास्ट पेज। अच्छा, ओ हो देखो इसमें क्या है, AB लिमिटेड and CD Limited both started business on 1st January 2019 with an ordinary share of capital of $100,000. Neither company had any debentures or loans. Both companies had the same profit in 2019. Only AB Limited paid a dividend. The return on capital employed was calculated using closing capital employed. Which statement about AB Limited ROC is correct when compared to that of CD Limited? इसका आंसर ऑप्शन 1, हायर। अच्छा, अब आप सब मुझसे ये पूछेंगे कि सर ये जो है हायर कैसे हुआ, सवाल है कि ये हायर कैसे हुआ। देखो बात पता है क्या है, जो कंपनी फर्स्ट का 20,000 का प्रॉफिट हुआ दोनों कंपनीज का, और एक ने जो है वो 5,000 का, एक ने जो है वो 5,000 का डिविडेंड दे दिया, तो इसका मतलब है कि एक की रिटेन अर्निंग 15,000 है, एक की रिटेन अर्निंग 20,000। तो जब रिटेन अर्निंग को और कैपिटल, अब इसका कैपिटल 1 लाख है AB को, और उसकी रिटेन अर्निंग आ रही है 15,000, और CD जो है कंपनी उसका कैपिटल 1 लाख है और उसकी रिटेन अर्निंग आ रही है 20,000, तो कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो AB कंपनी का कम हो जाएगा, क्योंकि उसकी रिटेन अर्निंग की वैल्यू छोटी हो जाएगी डिविडेंड देने की वजह से, और इसकी जो है कोई डिविडेंड नहीं है, तो जितना प्रॉफिट होगा उतनी रिटेन अर्निंग रहेगी, तो इसकी रिटेन अर्निंग हो जाएगी बड़ी। अब ROC का फॉर्मूला याद है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड किसका ज्यादा है, CD का, क्योंकि उसने कोई डिविडेंड नहीं दिया, उसकी रिटेन अर्निंग बढ़ी है, इसलिए जो AB है उसकी रिटेन अर्निंग कम है, तो इसलिए उसका जो ROC वो बड़ा आएगा बनिस्बत CD लिमिटेड। ये ऑप्शन इसके आंसर। अच्छा जनाब, अब आते हैं 32 पे। भाई देखो, फ्यूचर एक्टिविटीज प्लान करने की कौन करता है, मैनेजर्स, कोई इसमें प्रॉब्लम ही नहीं, चलो आ गया। द स्पेशल स्किल्स ऑफ द एम्प्लॉइज आर नॉट रिकॉर्डेड इन द फाइनेंशियल। भाई देखो, जितने एब्स्ट्रैक्ट होते हैं दुनिया में, उसमें प्रॉब्लम क्या होता है, मनी मेजरमेंट,
लव, हेट, एंगर, ब्रेवरी, कावर्डाइज, ये सारी चीजें दुनिया में जितनी एब्स्ट्रैक्ट चीजें, स्किल्स, ये सब के सब एब्स्ट्रैक्ट हैं, दे कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। खत्म हो गई बात। अच्छा देखो, अकाउंटिंग प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस ये कहता है कि आपका जो है वो एसेट्स ओवरस्टेट नहीं होना चाहिए और लॉसेस जो है वो अंडरस्टेट नहीं होना चाहिए। बी ऑप्शन आंसर होना चाहिए। अगर भाई गलती से भी आपके जो एसेट्स हैं वो कम नहीं होने चाहिए। ठीक है, अब आ जाओ 35 पे, लास्ट क्वेश्चन। अच्छा देखो, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का ये काम नहीं है कि वो दुनिया में जाकर जो है हर कंट्री में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाए और स्टैंडर्ड सेट करे, ये उसकी जिम्मेदारी नहीं। वो सिर्फ अपने स्टैंडर्ड बना रहे, आपको फॉलो करना है, आपकी मर्जी, नहीं करना आपकी मर्जी। ठीक है, जाके एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाएंगे। ठीक है, ओके, दिस इज ऑल फॉर टुडे। तो इंशाल्लाह देखिएगा, आपको अगर मज़ा आए तो, और कुछ कमी रह गई हो, कहीं कोई खामी हो तो ज़रूर मेंशन करें, ज़रूर बताएं कि सर यहाँ पे जो है इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। मैं कोई बहुत ज़्यादा कोई हाई फाई किस्म की चीज़ नहीं हूँ कि मुझसे गलती नहीं हो सकती, मुझसे भी गलती हो सकती है, मेरी प्रेजेंटेशन में भी खामियाँ हो सकती हैं। तो अगर कोई खामी हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर जो है वो मेंशन करें। मैं इंशाल्लाह बेहतर करूँगा, बेहतर बनाने की, इससे अच्छी चीज़ों की कोशिश करूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।